رات کا اختتام تھا جب انہیں تھانے میں لا کر تفتیش کی گئی۔ جیسی تمسخر بھری جسم کے آر پار ہوتی نظریں تھیں اور جیسے سوالات تھے، پوروا کے حواس جواب دینے لگے۔ ان کے علاوہ بھی ایک بڑی تعداد میں لڑکیاں اور لڑکے وہاں موجود تھے۔ بولڈ بےہودہ لباس پہنے وہ لڑکیاں جو کلب سے اریسٹ کر کے سیدھی یہاں لائی گئی تھیں، سب کی حالت خراب تھی، مگر پوروا کی تو جیسے زندگی یہیں تھم جئی ختم ہونے کو تھی۔ سب سے کم سن اور حیران پریشان سی، نہ سوال سمجھ پا رہی تھی نہ جواب جانتی تھی۔ ڈالو انہیں جیل میں، جب تک ہاسپٹل والی چاروں لڑکیوں کا ڈوپ ٹیسٹ، ایسا ٹیسٹ جس سے پتہ چلے کہ بندہ ڈرگ لیتا ہے یا نہیں لے لیتے، ان کو بھی ساتھ رکھو۔ جیلر کی کرخت آواز پر وہ لرز اٹھی۔ ایک پولیس والا جو بغور پوروا کو دیکھ رہا تھا چونک سا گیا، جلدی سے ایک طرف ہوتا موبائل نکال کر کسی کو کال ملانے لگا۔ رکو ایک منٹ، یہ سب کیا ہے؟ اس لڑکی کو میں جانتا ہوں، یہ یہاں کیسے؟ ایس پی کے ساتھ کھڑے سوٹڈ بوٹڈ مرد نے چونک کر سوال کیا تو ایس پی نے پولیس والوں کو روک دیا۔ شاہ صاحب، کلب میں ریڈ کے دوران پکڑا ان سب کو، ڈرگز لیتے ہیں اور جسم فروشی کا کام کیا جا رہا تھا وہاں، ایس پی نے تفصیل سے آگاہ کیا، جبکہ عدم شاہ کی نظر تو پوروا پر جمی تھی۔ سفید یونیفارم میں بالکل سفید پڑتی خشک ہونٹوں والی پوروا جو اس وقت بالکل حواس میں نہیں لگ رہی تھی، مگر سب میں نمایاں اور الگ رہی تھی۔ اسے رہا کرو ایس پی، یہ ایسی نہیں ہے، چاہو تو میری طرف سے باقاعدہ ضمانت لے لو۔ عدم شاہ نے نظریں پوروا پر جما کر کہا، ارے کیسی بات کرتے ہیں شاہ صاحب، لے جائیں آپ اسے۔ اس سب کے لیے معذرت، اور انہیں تو شاید کسی ہاسٹل سے لایا گیا۔ ایس پی نے جلدی سے معذرت کرتے ہوئے وضاحت دی۔ عدم شاہ خباثت سے مسکرایا۔ پوروا کیس سے الگ ہو گئی، اس کا موبائل بھی دے دیا گیا، اسے لے کر وہ تھانے سے نکلا۔ وہ مسلسل روتی اس کی مشکور ہو رہی تھی۔ تھانے آنے کی ذلت تو وہ اٹھا ہی چکی تھی، تفتیش کے سوالات بھی جھیل چکی تھی۔ کچھ دیر تک ڈوپ ٹیسٹ میں جب اس کی باڈی سے ڈرگ کا نشان نہ ملتا تو اسے ویسے بھی ہاسٹل میں پہنچا دیا جاتا، مگر وہ اس سب سے بے خبر عدم شاہ کی مشکور ہو رہی تھی۔ ارے اتنا شکریہ ادا مت کرو، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں تمہارے انکل کا فرینڈ ہوں، ہم ایک بار مل بھی چکے ہیں، آؤ ابھی میرے ساتھ چلو، پھر میں بعد میں تمہیں آرام سے گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ شرافت کا مظاہرہ کرتے بول رہا تھا۔ پوروا نہیں پہچانی تھی اسے، اور نہ ہی ابھی اسے اس جان پہچان سے غرض تھی۔ اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ اسے بچا لیا گیا تھا۔ انکل مجھے بس ایک کال کرنی ہے، وہ کانپتے ہاتھوں سے موبائل آن کرنے کی ناکام کوشش کرتے بول رہی تھی۔ تھانے کے گھٹن زدہ اور ذلت بھرے ماحول سے نکل کر نہ زبان کام کر رہی تھی نہ ہاتھ۔ ابھی تم ٹھیک نہیں ہو، بعد میں کال کر لینا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر وہ سکون سے بولا اور نظر بچا کر موبائل دور پھینک دیا۔ گاڑی کا ڈور کھول کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود بھی دوسری طرف سے بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا گیا۔ چہرے پر اتنے وقت کے بعد کامیابی حاصل ہونے کی چمک تھی۔ اس کے انلیگل سائیڈ بزنس کا ایک کام ایسا جو اتنا ضروری بھی نہیں تھا، اس کے لیے جب اسے تھانے ارجنٹ بلوایا گیا تو وہ بہت بد مزہ ہوا۔ ابھی صبح کا سویرا بھی نہیں پھیلا تھا جب اسے پولیس اسٹیشن آنا پڑا، مگر اب وہ خوش تھا، موڈ اچھا ہو گیا تھا یکدم۔ ایک نظر سمٹ کر سیٹ پر بیٹھی پوروا کو گہری نظر سے روتے دیکھا اور گاڑی کا رخ اپنے اپارٹمنٹ کی جانب موڑ لیا۔ عیسیٰ رات آنکھوں میں کاٹتا بے چینی سے کروٹ بدل رہا تھا۔ صبح فجر کے بعد کمرے سے نکلا اور حویلی کی پچھلی جانب باغ میں پرسکون خاموش ماحول میں واک کرتا موبائل میں موجود پوروا کی پکچرز دیکھتا خود کو سکون پہنچانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی یادیں اب اکثر شدت سے حملہ آور ہونے لگی تھی۔ بال ماتھے پر بکھرے تھے، نیلی آنکھوں میں رت جگہوں کے سرخ ڈورے تیر رہے تھے، مردانہ سیاہ کھدر کے کرتا شلوار میں دراز سراپا اور شفاف رنگت نمایاں ہو رہی تھی، کندھوں پر سیاہ شال ڈلی ہوئی تھی۔ صبح صادق کی نیلی روشنی میں وہاں چلنا اعصاب کو پرسکون کر رہا تھا۔ اس کی نظر سامنے پڑی تو ٹھٹکا۔ ادب خان تیز رفتاری میں اپنے کمرے سے نکلتا اجلت میں جیکٹ کی زپ بند کر رہا تھا، بازو پر شال لٹک رہی تھی، بکھرے بال بتا رہے تھے کہ ابھی نیند سے جاگا ہے۔ ادب خان رکو، کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ عیسیٰ نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کے پاس پہنچتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا ادب خان کا کوئی اپنا نہیں، اس کا ہر کام ہر جلدی صرف خانزادہ حدیر کے لیے ہوتی ہے۔ گڑیا کی خبر ملی ہے چھوٹے خان، ہمیں جلدی شہر کے لیے نکلنا ہوگا، ادب خان نے شال اڑتے ہوئے بتایا۔ گڑیا؟ پوروا کا پتہ چلا کیا؟ عیسیٰ کے حواس بیدار ہوئے، بےتابی سے پوچھتا اس کے ہم قدم ہوا۔ ادب خان نے ہاں میں سر ہلایا۔ عیسیٰ کے حواس بیدار ہوئے، بےتابی سے پوچھتا اس کے ہم قدم ہوا تو ادب خان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں بھی چلوں گا، بتاؤ کہاں ہے وہ؟ عیسیٰ نے کھڑے کھڑے فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ سیاہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ادب خان جلدی میں تھا، بحث کرنے کی بجائے خاموشی سے سر ہلاتا گاڑی سٹارٹ کر کے برق رفتاری سے حویلی کا پھاٹک کراس کر گیا۔ پولیس اسٹیشن میں ہے، کسی ہاسٹل سے ڈرگ کے الزام میں لڑکیاں گرفتار ہوئیں، ان میں وہ بھی شامل ہیں، میں نے ان کی تصویر ہر جگہ پھیلا رکھی تھی، شکر ہے ہمارے علاقے کے ایک پولیس والے نے انہیں پہچان لیا۔ ادب
अदब खान ड्राइविंग करते हुए तफसील से आगाह कर रहा था। उसकी ड्राइविंग तो हमेशा से बेहतरीन थी। हवा जैसी तेज़ रफ्तार और ऊंचे टेढ़े रस्तों पर भी लड़खड़ाने नहीं देता था गाड़ी को। ईसा तफसील सुनकर शॉक्ड हुआ। उसकी इतने वक्त बाद खबर मिली, वो भी कहाँ से? क्या वो ड्रग्स लेने लगी थी? पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी वो? कैसे लाई गई होगी? किस हाल में होगी? सोचकर ही उसके हवास सल्ब हो गए। बेबस सा सर हाथों पर डाल बैठा। अदब खान के मोबाइल पर फिर से कॉल आ रही थी। उसने कॉल अटेंड करके स्पीकर ऑन किया। तवज्जो पूरी ड्राइविंग पर थी। अदब खान साहब, बीबी जी को कोई ज़मानत करवा के ले गया थाने से, हमको अभी पता चली है ये बात। वही पुलिस वाला था शायद। ईसा सर उठाकर स्क्रीन को तकने लगा जब अदब खान के माथे पर बल पड़े। कौन ले गया? किसने ज़मानत करवाई? अदब खान ने सर्द करक लहजे में सवाल किया। कोई अदम शाह आया हुआ था, वो जानता था बीबी जी को, उसने ज़मानत करवाई। स्पीकर से आवाज़ उभरी। अदब खान उलझ गया था। अदम शाह कौन था आखिर, और वो जानता कैसे था पूर्वा को? क्यों ज़मानत करवाई उसने? परेशान बैठे ईसा के जहन में झमाका हुआ। अदम शाह आयरा शाह का चचाजाद कज़न और हस्बैंड। मैं जानता हूँ उसे, अदम शाह को। मैं एड्रेस लेता हूँ अदब खान। ईसा ने जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकालकर आयरा का नंबर तलाशा और उसे कॉल मिलाई। हेलो, आयरा की नींद में डूबी आवाज़ उभरी। आयरा, इट्स मी ईसा खान, वो जल्दी में बोल रहा था। अदब खान ने रोड कदरे सीधा होते रफ्तार मजीद बढ़ा ली थी। ईसा खान, क्या हुआ आपने इतनी सुबह? अभी वो हैरत से बोल रही थी जब ईसा ने बात काटी। आयरा, तुम्हारा हस्बैंड अदम शाह कहाँ है? अदम शाह कहाँ है? मुझे उससे मिलना है, प्लीज़, इट्स अर्जेंट। वो तेज़ी में बोलता आयरा को ठिठका गया। वो तो घर पर नहीं, सुबह कहीं गए थे। आई डोंट नो कहाँ गए और कहाँ हैं, अभी तक नहीं आए। आयरा ने हैरत में डूबी आवाज़ में बताया। कॉल हिम प्लीज़। वो कहाँ है पता करो, बताओ, अभी अभी बताओ मुझे। ईसा का लहजा बता रहा था मामला बहुत संजीदा है। आयरा ने बिना मजीद सवाल किए कॉल काट दी। ईसा ने गहरा सांस भरकर सीट की पोस्ट से सर टिका दिया। अदब खान के भी लब भींचे हुए थे। अदम शाह जाने कौन था और कैसे जानता था पूर्वा को? उसकी ज़मानत करवा कर ले जाना भी उनसे बेसकून कर रहा था, मगर एक इत्मीनान था कि वो कम से कम जिंदा तो है, खबर तो मिली, कोई सुराग तो हाथ लगा उनके पूर्वा का। पूर्वा फटी फटी आंखों से सामने मौजूद अदम शाह को देख रही थी, जिसकी आंख में न शर्म थी न शराफत, सिर्फ हवस और नफरत थी। और उसके अल्फाज से टपकती अजियतनाक हकीकत, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में उसे धंसाता जा रहा। वो अपने बचाव के लिए हाथ पैर मारने से भी कासिर हो। क्यों हैरत हो रही है? यही हकीकत है। कीमत दे चुका हूँ तुम्हारी। तुम्हारे उस घटिया अंकल ने मुझसे पैसा लिया और भाग गया, और अब न्यूयॉर्क में छुपा बैठा है। ढूंढ लिया है उसे मैंने। उसका अंजाम तो मैं बाद में तय करूंगा, पहले तो तुमसे अपनी कीमत वसूल करूंगा। अदम शाह ने शैतानियत से मुस्कुरा कर कहा। वो जो अपनी शादी की वजह से कुछ वक्त के लिए सब उल्टे सीधे काम पसे पुश डालकर शरीफ बना हुआ था, पूर्वा के हाथ आते ही सब भूल गया। पूर्वा का दिमाग सुन्न होने लगा। आज का दिन उसके लिए जिल्लत और रुसवाई से बढ़कर कुछ ना था। उसे वहां लाते ही वो अपने तमाम मामलात 1-2 दिन तक के लिए मुलतवी करने चला गया था। आयरा की आती कॉल्स पर उसे भी ज़रूरी मीटिंग का कहकर मुतमईन कर दिया। जब सुकून से फारिग होकर उसके पास आया तो बर्फ़ का मुजस्मा बनी पूर्वा बेताबी से एक कॉल करवाने का कह रही थी। बस इतना बोली कि वो शराफत और तमीज़ का लिबादा ही उतार बैठा, यकदम ही जैसे वो कोई जानवर बन गया। आज पूर्वा के लिए सबक लेने का दिन था। लड़की को घर से नहीं निकलना चाहिए। बगैर वारसीन के हॉस्टल में रहती लड़कियां शरीफ भी हों तो बुरी लड़कियों के साथ पिस जाती हैं, और ये कि हर जान पहचान वाला या किसी भी मुसीबत में बचाने वाला इंसान ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छा हो सकता है वो अपनी बुरी नीयत छुपाए मौके की तलाश में बैठा हो। उसने सब समझ लिया एक ही दिन में, एक साथ सारी हकीकतें। नहीं प्लीज़, मैं आपके पैसे। पूर्वा सुन सी कदम पीछे बढ़ाती हकला कर बोली। जिस्म कप कपा रहा था और दिल की धड़कन खौफ से रुकने लगी। नो बेबी गर्ल, पैसे मैं तुम्हारे अंकल से निकलवा लूँगा, तुम वही दो जो दे सकती हो। वो उसे गहरी नज़रों से देखता उसकी तरफ बढ़ा। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा। पूर्वा के बाकी अल्फाज अदम शाह के बाजू की पकड़ से उसके खींचने से मुंह में ही रह गए। उसकी मजबूत ग्रिफ में फड़फड़ाती वो मर जाने के दर पे थी। वो उसे झटका देकर बेड पर फेंक चुका था। ऊंधे मुंह गिरती पूर्वा का सर चकरा गया। छोटे से जख्म पर चीख चीख कर कान सुन कर देने वाली पूर्वा उस वक्त जहनी तौर पर इतनी मफलूज हो गई कि आवाज़ तक निकालना मुहाल हो गया। उसे खाए पिए काफ़ी वक्त गुजर चुका था। जहनी थकावट और खौफ ने पहले उसे अधमुआ कर दिया था। ऊपर से पुलिस स्टेशन जाने की जिल्लत और यहाँ आकर अचानक टूट पड़ने वाली नई आफत, जिसका अपना दिल धड़कने से इनकारी हो रहा था। वो भला उस मर्द का कैसे मुकाबला करती? प्लीज़ खुदा के लिए मुझे छोड़ दें, वो सिसकती हुई डूबती आवाज़ में मुश्किल से बोल पा रही थी, मगर लगता था उसके अल्फाज उसके दिल में दबते जा रहे थे। अदम शाह ने तमस्कर से उसकी निढाल हालत को देखा और झटके से पकड़ कर
उसे अपने सामने करता, गिरेबान में हाथ डालकर सफ़ेद कमीज़ एक ही बार में फाड़ कर 2 हिस्सों में कर गया। शैतान हावी हो जाए तो ना फरियादें असर करती हैं और ना अल्लाह का खौफ। वो भूल गया था कि उसकी भी 2 बेटियां हैं। अपनी शर्ट फटती महसूस करती पूर्वा का दिमाग अंधेरों में डूब गया। जिल्लत, तन्हाई, रुसवाई बारी बारी मिल चुके थे। अब जो बची कुची इज्जत थी वो भी जाने वाली थी। उसे मर जाना चाहिए, मर ही जाना चाहिए था। अल्लाह जी, उसके दिल ने आखिरी बार शिद्दत से पुकारा। जब उसी पल अपार्टमेंट की बेल पूरे जोर से बजाई गई, यूं जैसे कोई हाथ रखकर भूल गया उठाना। सामने पड़े नाजुक वजूद की राहनाइयों में खोता आदम शाह चौंक गया। बदमज़गी से उठकर रूम से निकला और दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा अब धड़ाधड़ बजाया जा रहा था। व्हाट रबिश, हु द हेल आर यू? आदम शाह कम से कम उस वक्त आने वाले किसी इंसान को वेलकम नहीं कर सकता था। डोर खोलकर फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला। सामने दरवाजे पर खड़े अदब खान और उसके साथ खड़े ईसा ने ठिठक कर उसका हुलिया देखा। आयरा ने सफ़र के दौरान ही उन्हें कॉल करके बता दिया था कि उसका हस्बैंड कुछ मीटिंग्स के सिलसिले में कुछ दिन के लिए अपने अपार्टमेंट पर है। एड्रेस लेकर अभी वो पहुंचे ही थे, मगर सामने वाला हुलिया किसी मीटिंग जैसा तो हरगिज़ न लगता था। शर्ट के कुछ बटन खुले थे, उलझा हुआ सा अंदाज। बात करनी है। अदब खान तो उसे धक्का देता सीधा अंदर दाखिल हो गया। ईसा सर्द निगाहों से उसका जायज़ा लेता अदब खान के पीछे हुआ। कौन हो तुम लोग? हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? अदम शाह पूरी कुव्वत से चीखा। वो उन दोनों को ही नहीं पहचान पाया था, मगर उनके अंदाज खटका रहे थे। आज सुबह तुमने जिसकी जमानत करवाई वो लड़की कहाँ है? अदब खान चुपते लहजे में पूछ रहा था, जबकि ईसा अतराफ का जायजा लेता सामने के 2 रूम्स की तरफ बढ़ा। हे यू स्टॉप देयर! कौन सी लड़की? मैं किसी को नहीं जानता, निकलो यहाँ से। अदम शाह के हवास बेदार हुए। तेजी से बोलता ईसा की तरफ बढ़कर उसे रोकने लगा, जो एक कमरे में घुसा उसकी तलाशी ले रहा था। अदब खान ने आगे बढ़कर उसका कंधा इस सख्ती से थामा कि वो रुक गया। उसे धक्का देकर पीछे किया और सुर्ख नज़रों से घूरा। 1 इंच भी मत हिलना शाह साहब, मेरा दिमाग घूम गया ना तो जान से चले जाओगे। अदब खान की घुर्राती आवाज़ में दी जाने वाली धमकी में ऐसा कुछ रोब था कि बेधड़क लोगों के घर और ऑफिसेज में घुसकर पैसा वसूलने वाले अदम शाह के पसीने छूटे। ईसा तेजी से एक कमरे की तलाशी लेकर दूसरे की तरफ बढ़ा। घबराहट के मारे पसीने छूट रहे थे। दरवाज़ा जैसे ही खोलकर नज़र दौड़ाई, सामने बेड पर बेजान पड़े वजूद पर नज़र टिक गई। लड़खड़ाते कदम उठाकर उसकी तरफ बढ़ा। फटी हुई कमीज़ और बिखरे बालों वाला, होशो हवास से बेगाना नाजुक वजूद पूर्वा का ही था। आगे बढ़कर अपनी शॉल उसके गिर्द लपेटकर उसे खुद में समेटता बाजुओं में उठा गया। लब सख्ती से भींचे थे, जब्त करना मुहाल हो रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि आज जब सामना होगा तो इस हाल में मिलेगी वो। उसे उठाकर वो बाहर आया तो अदब खान मुतवज्जो हुआ। उसकी मर्दाना शॉल में लिपटा वजूद, जिसे ईशा ने सीने से लगाया हुआ था, और चेहरे की सुर्खी कड़े जब्त की निशानी जाहिर कर रही थी। अदब खान का खून खौल उठा। आप चलें छोटे खान, मैं आ जाऊंगा। डोर से निकलते ईसा ने अदब की बात पर सर हिला दिया। दिन पूरी तरह निकल चुका था। बाहर लोगों की चहल पहल थी और तेजी से बिना किसी तरफ देखे पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और पूर्वा को नरमी से पिछली सीट पर लिटा दिया। गाड़ी स्टार्ट करता तेजी से हदीर विला की तरफ बढ़ गया। आंखें लहू रंग हो रही थी, दिल कुरला रहा था। जब्त करते करते भी सिसकी निकली और आह भर कर रह गया। अगर आज ना पहुंच पाता वहां तो देखो, जो चाहिए था तुम्हें मिल गया, अब जाओ यहाँ से तुम भी। अदम शाह ने ईसा के निकलते दांत कचकचाकर सामने खड़े ऊंचे चौड़े पठान मर्द को देखा। हाँ मिला है, और कैसा हाल में मिला है देख लिया। मोबाइल पर कोई नंबर मिलाते अदब खान ने उसकी बात पर जोरदार तमाचा उसके मुंह पर रसीद करते सर्द लहजे में कहा। अदम शाह का जबड़ा हिल गया था। मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारी लड़की के साथ, चाहो तो पूछ लो उस लड़के से, वो लड़की बस बेहोश है। अदम शाह ने जिंदगी में पहली बार अपने अमल की वजाहत दी थी। अदब खान ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हारे पास से हमें लड़की बेहोश मिली, हम पठान हैं, हमारी गैरत को ये भी गवारा नहीं। मुझे अंधा या पागल समझने की कोशिश भी मत करना, और अभी तुम्हारे साथ क्या करना है इसका फैसला हमारे खानजादा साहब करेंगे। अगर उनको बताए बिना आज तुम्हें जाने दिया तो मुझे मार डालेंगे। अदब खान ने करक लहजे में कहा और खानजादा को कॉल मिलाई। वो जो सुबह जल्दी में बिना बताए यहाँ पहुंचा था, फ्लैट का डोर लॉक करके पिस्टल अदम शाह पर ताने संजीदगी से सारा मामला खानजादा को तफसील से बता रहा था। वो खानजादा जिससे उसने ये सब करख्तगी और जुर्रत सीखी थी, वो खुद आ जाए तो क्या हाल करेगा। अदम शाह सर पकड़कर बैठ गया कि कहाँ फंस गया था। आखिर उस भूखे नंगे लालची वकार के घर पलने वाली उस लावारिस लड़की और इन पठानों का आपस में क्या लेना देना था? सिर्फ यही कि वो उसकी बहन का ससुराल था, या कुछ और जिससे वो नावाकिफ था।